Very good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, thank you, Deepak, Shashank, everyone. Good afternoon, Abhishek, everyone. So, in the previous lecture, we discussed about various object orientation concepts and UML, the basic introduction of UML. And from today onwards, we will learn how to draw various types of UML diagrams. Okay, so in continuation of that, previous lecture, today we will learn how to draw class diagram. Okay, so my suggestion is everyone, please have a notebook and pen along with you. I'm giving 1 minute to everyone so that you can get a piece of paper or simply a notebook and a pen, so that simultaneously you can learn how to draw class diagrams. Within a minute, please arrange all these things. So I hope you have come up with your required stationery, and just let me know whether this slide is visible to you guys. Is it visible to you? Okay, thank you, Anurag. Everyone, thank you. So let's proceed. सारा फोकस यहीं रखिएगा. बहुत ही सिंपल है, और इवन जो सिंपल तो खुद अपने आप में है ही. एंड आई एम गोइंग टू लेट यू नो द बेसिक्स एज वेल एज शॉर्टकट्स. ओके, कि क्लास डायग्राम अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है. तो कुछ ट्रिक्स भी मैं इसमें बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, और डेफिनेटली वी विल कवर द बेसिक्स एज वेल. ओके, तो बड़े ध्यान से समझते चलिएगा इसको. एंड फेयर चांसेस, देखिए मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इन विद रिस्पेक्ट टू यूएमएल वी आर गोइंग टू स्टडी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 different diagrams. Okay, and among these diagrams, be mentally prepared that any two diagrams may be asked in your examination. Okay, so God knows one of them may be class diagram. Okay, so आपको सारे डायग्राम ऐसे ही पढ़ करके चलने हैं कि ये वाला एग्जाम में आएगा. गेट. तो एक एग्जाम्पल मैं कराता चलूंगा और 2-3 एग्जाम्पल आप लोग करेंगे. ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. केवल इस क्लास में डायग्राम देखने से नहीं आएगा, है ना. जैसे मैं पहले भी कहता आता था इस चीज को कि ये डायग्राम्स और बाबा रामदेव का योगा करने से होगा, देखने से नहीं होगा, है ना. सो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू do it simultaneously and as a homework as well. Okay, so let's start UML class diagram. So what is this exactly? Let's have a look. Class diagram is a static diagram that represents the static view of an application. Class diagram describes the attributes and operations of a class
and also the constraints imposed on the system. That simply means कि देखिए जब कोई program हम बनाते हैं, then in a particular program various classes may be there. Okay, for example, if I talk about an result management system, then there may be a different class of a student, there may be a different class of subjects, different class of maybe teacher or examination controller who is controlling all these things. So you can say various classes are there. Each and every class may have different attributes. For example, if you talk about a student class, then a particular student may have name, address, course, section, university roll number, likewise. So all these things can be considered as attributes. Okay. Apart from attributes, each and every class must have some operations that is being expected from that particular class, that it shows what kind of behavior, what is the functionality of this particular class. So all these things comes under either you can say operations or functions. Okay, for example, student functions may be register himself or herself for any particular course or semester. They are also supposed to log in the system to access the features of this, like as a GLAMS portal. All of you have to has to log in, getting it, to access the credentials, access the properties of GLAMS. And for any particular form, you are supposed to fill all the details. So that means what? These are the required or desired operations or functions from any particular class. Okay. However, various constraints may be there. What are the various constraints that we will discuss at later stage in today's lecture as well, but after some time. Okay. The class diagrams are widely used in the modeling of object-oriented system because this is one-liner question. Please make it very clear. You may tick on the third point. The class diagram are widely used in the modeling of object-oriented system because they are the only UML diagrams which can be mapped directly with the object-oriented languages, because it's exactly follow what the concepts of object-oriented language in the class diagrams. Because everything, see, you can say, I hope you have worked on Java and C++. So everything, if it is a purely object orientation, then everything starts with a class. See, and so in the same purpose, every particular diagram is having a different type of classes. So that means it is exactly compatible to that particular language. Either you are using C++ or pure object-oriented language as Java. Additionally, class diagrams shows a collection of classes, interfaces, associations, collaborations, and constraints as well. It is also known as a structural diagram as well. So make it underline. Class diagrams are also known as structural diagrams. Yes, these are the various constraints that we're talking about in the previous slide. Various types of access specifiers. Who will let me know what are the various access specifiers with respect to programming languages? Just respond. Shubhanshi ji. What are the various access specifiers? Just let me know. It's quite surprising. Anyways, let's focus over here. The very first is public. Symbol it is denoted as a symbol with respect to class diagram. Okay, यहाँ पर special. So public plus symbol, which is what? Accessible in the same class and by other classes. Next is it, that is denoted by this minus symbol, which is accessible in the same class only. The third one is protected, that is mentioned as hash symbol, which is accessible in the same class and the classes which inherits this base class.
So my suggestion is, if anybody don't remember all the success specifiers, then please note it down. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें अब गलती ना हो, क्योंकि इनका यूज क्लास में होगा. ओके, तो प्लीज ये ध्यान रखना है. एक्सेस स्पेसिफायर आई एम श्योर किसने पढ़ा होगा, पूरे मतलब पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोडक्ट, इनके सिंबल रखिएगा. पब्लिक नोटेड विद अस. Yeah, unfortunately there was a network issue, probably. Oh my God, Ritik. Yes, you are right. But with respect to class diagrams, we are having these three access specifiers. Okay, so please take note. Apart from these access specifiers, some golden rules are there for this class diagram, and these golden rules are like: number first, attributes should be either private or protected. कि किसी पर्टिकुलर क्लास के जो एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे और वो मिसमैच हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास के, वो या तो हम प्राइवेटली डिफाइन करते हैं या फिर प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हैं, until और unless it is clearly mentioned in the question language कि that one is public. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे या तो हम प्राइवेट करेंगे या प्रोटेक्टेड करेंगे. एंड ऑल द फंक्शंस और ऑपरेशंस दैट शुड बी पब्लिकली डिफाइंड. इसको हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तब तक डिफाइन नहीं करेंगे जब तक कि हमें मेंशन ना हो. ओके, तो ये दो छोटे से रूल हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं. गिविंग जस्ट हाफ मिनट टू यू गाइस, एंड आई एम श्योर कि एवरीवन इज कैरिंग हिज और हर नोटबुक. ये गोल्डन रूल लिख लीजिए, काम आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहेंगे फिर. Attributes should be defined either private or protected, and functions should be divided as public. Noted? जल्दी से बताएं. Noted these rules? Okay, great. Now look at some class diagrams notations. क्लास डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उस डायग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट विल बी लुक्स लाइक दिस इमेज. सिंपल एक रेक्टेंगल है that is divided into three parts. The upper one is known as class name, middle one is known as attributes, third one is known as operations और functions. तो सबसे ऊपर क्लास का नेम आ जाएगा, फिर मिडिल वाले सेक्शन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के, जैसे स्टूडेंट है तो उसका नाम, पता, एड्रेस, रोल नंबर, एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, ये सब चीजें उसके एट्रीब्यूट्स में आ सकती हैं. एंड वेरियस ऑपरेशंस दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास, कि ये क्लास स्टूडेंट क्लास है तो क्या क्या परफॉर्म कर सकती है. वो लॉगिन कर सकता है, वो फील्ड डिटेल्स हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है. सेम केस विद एम्प्लॉय एज वेल, है ना. तो ये सारी चीजें हमारी फंक्शंस में आ जाएंगी. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा. लाइक दिस, देखिए ये स्टूडेंट नाम की एक क्लास नेम की जगह क्या आ गया, स्टूडेंट. ठीक है, देखते चलिए जरा. क्लास नेम इज स्टूडेंट. एट्रीब्यूट्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने चार एट्रीब्यूट ले लिए हैं. नेम, अब इसका डेटा टाइप लिखना जरूरी है, स्ट्रिंग. एड्रेस, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग. डेट ऑफ बर्थ, दैट माइट बी आइदर इन स्ट्रिंग फॉर्म और डेट फॉर्म, वट एवर योर डेटाबेस अलाउड. एंड नेक्स्ट वन इज मे बी फोन नंबर, डेफिनेटली इट विल बी नंबर टाइप. ओके, अब कुछ एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस और फंक्शंस, जैसा अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था.
रजिस्टर, दैट मीन्स स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अब क्योंकि ये फंक्शन है, दैट्स व्हाई दिस ब्रेसेस विल बी देयर. ओके. एंड मैंडेटरली कि जो भी फंक्शन आप लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप आपको जरूर लिखना है. आई रिपीट, whatever functions or operations you are mentioning, you have to mention its return type, as well as all the attributes must have their data type. ये ध्यान रखिएगा. अगर आप सिर्फ नेम, एड्रेस, डीओबी, फोन इतना लिख करके आ जाएंगे तो दैट इज इनकम्प्लीट इन नेचर. अगर आप ऑपरेशंस के केसेस में केवल रजिस्टर, लॉगिन, फील्ड डिटेल्स ये सब लिख करके आएंगे, देन दिस विल बी इनकम्प्लीट until or unless you are mentioning its return type or as well as data type with respect to attributes. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, void void void. अब एक ट्रिक सुनिए. जब तक कि स्पेसिफाइड ना हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या जो आपको केस स्टडी गिवन हो, तब तक आप जो भी क्लासेस हैं मैक्सिमम 5 एट्रीब्यूट्स रखिएगा, जब तक स्पेसिफाइड ना हो. ओके. अगर स्पेसिफाइड है तो वो 6, 7, 17, 20 जितने भी होंगे उतने करने ही पड़ेंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स अभी आता नहीं. सो बी मेंटली प्रिपेयर कि हमें मैक्सिमम 5 रखने हैं. बहुत हुआ तो 6 रख दीजिएगा, नॉट मोर देन दैट. अदरवाइज वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी और क्लासेस कई सारी बनेंगी एक ही डायग्राम के लिए. ओके. सो नॉट मोर देन 5 और इन वर्स्ट केस 6, बट नॉट लेस देन 3. इससे कम भी नहीं. क्यों? पता चला आपने सिर्फ एक ही रख दी, बड़ा इंपॉर्टेंट सी क्लास थी और एक ही एट्रीब्यूट डिफाइन किया, तो दैट विल बी इनकम्प्लीट इन नेचर एज वेल. तो इन सब के लिए आप एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और हर एट्रीब्यूट को कोलन लगा करके, ध्यान से देखिए, कोलन एंड देन इट्स डेटा टाइप. तो वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप, डेट है तो डेट टाइप, नंबर है तो नंबर टाइप, अकॉर्डिंगली. एडिशनली जब हम फंक्शंस वाले यानी कि लास्ट सेगमेंट पर आ रहे हैं तो देखिए फंक्शन का नाम हम लिख रहे हैं और वो ब्रेसेस लगा रहे हैं, देन कोलन एंड इट्स रिटर्न टाइप. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिकी, जो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ. जब तक कि मेंशन ना हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या केस स्टडी में, हाउएवर इट इज वेरी रेयर कि ये मेंशन हो कि फंक्शन का डेटा रिटर्न टाइप क्या होगा, आंख बंद करके आप सारे रिटर्न टाइप वॉइड कर दीजिए. नोबडी इज गोइंग टू मेक इट क्रॉस. कुछ भी गलत नहीं है भाई. मेरा प्रोजेक्ट है, मैं देख रहा हूँ उसको, मैंने इसका रिटर्न टाइप वाइट बना दिया हुआ है. ओके. गेटिंग इट? तो आंख बंद करके जब तक कि मेंशन नहीं है, मेक इट वाइट. ये बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से बताएं, फिर आगे स्लाइड पे चलें. जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करते करिए आप लोग. ये दोनों बातें क्लियर हैं सभी को? रिटर्न टाइप, डेटा टाइप. ठीक, अभिषेक, थैंक यू डियर. सो लेट्स प्रोसीड, क्योंकि बहुत सारा काम है अभी. Yes, very important term, relationship in class diagram. Very first is generalization. I'm sure कि database में आप लोग ये पढ़ चुके हैं. This is like a quick revision to you. Look at this example. दो example हैं यहाँ पर. In the very first case, a student, okay, that is being generalized into two parts as UG, PG. Student दो तरह के हो सकते हैं, undergraduate and पोस्ट ग्रेजुएट. आप लोग बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो सारे क्या हो गए, अंडर ग्रेजुएट हो गए. जो एमसीए, एमटेक, एम फार्मा के हैं, दे ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट. अल्टीमेटली दे बोथ आर स्टूडेंट्स. गेटिंग इट? आप भी स्टूडेंट हैं और एमटेक वाले स्कॉलर्स हैं, दे आर आल्सो स्टूडेंट. ओके. तो दिस इज व्हाट जनरलाइजेशन. सेकंड एग्जांपल, लुक एट एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में बी कैटेगराइज इनटू आइदर दे आर मैनेजर और क्लरिकल स्टाफ, है ना. तो दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी अलग होंगी. However, common attributes of manager and clerk in employee, कि कुछ ना कुछ भाई एम्प्लॉय आईडी इसका भी होगा, इसका कुछ नेम होगा, इसकी कुछ डेजिग्नेशन होगी, इसकी कुछ लोकेशन होगी. सेम केस विद क्लर्क. द क्लर्क, ऑल द क्लर्क ऑफिशियल्स आर हैविंग देयर नेम, देयर जॉब आईडी or employee ID, whatever you want to say, location, designation, everything should be same, but some part will be different. That's why they are categorized. Okay. But ultimately these two categories are comes under employee का ही part है ये. Okay. So in that case we can mention the generalization that will be useful in these diagrams. तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा. ये तो रिवीजन ही है, डीपीएमएस में आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज. नेक्स्ट इज एसोसिएशन इन क्लास डायग्राम. ये नोटेशंस ध्यान से नोट करते चलिएगा. लाइक आई हैव मेंशन्ड 1, दिस मींस एग्जैक्टली 1. अगर यहाँ 2 लिखते तो एग्जैक्टली 2, 5 लिखते तो एग्जैक्टली 5. तो कितनी डिग्री हो, जैसे हम डीबीएम से पढ़ते थे ना, 1 to 1, 1 to many, many to many. दिस इज लाइक दैट रिप्रेजेंटेशन. Okay, so if we are mentioning 1, that means exactly 1 person should be there, one associate will be there.
नेक्स्ट में बी जीरो डॉट 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 एस्ट्रिक, दैट मीन्स जीरो और मोर, कि या तो जीरो भी रह सकता है या उससे ज्यादा कितने भी रह सकते हैं। नेक्स्ट में बी वन और मोर, कि एटलीस्ट वन तो होगा, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इन दैट केस एडिशनली वन मोर, जीरो और मोर, कि या तो जीरो होगा या वन होगा, बट नॉट बियॉन्ड वन, नॉट मोर देन वन। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एसोसिएशन में। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? जल्दी से रेस्पॉन्ड करें, बस अब एग्जैक्ट डायग्राम पे ही आ रहे हैं। हरी अप। ओके दीपक, थैंक यू। अभिषेक, अनुराग, एवरीवन। नाउ लुक एट द एसोसिएशन टाइप्स इन class diagrams. Look at this thing. I have segregated association into two types as aggregation and composition. दोनों का ही देखिए सिंबल अलग है, डायमंड शेप और एक लाइन, बट हियर डायमंड शेप इज ब्लैंक एंड हियर डायमंड शेप इज फिल्ड। ओके, एग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज पार्ट ऑफ। अब देखिए डिफरेंस क्या है, समझिए इसको। एग्रीगेशन के देखिए दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल वन, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। ओके, किस लॉजिक पर हमने एग्रीगेट कर दिया हुआ? दैट सिंपली मीन्स कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने आप में क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस पेरिफेरल्स, वेरियस डिवाइसेस, दैट इंक्लूड्स कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, cabinet, and all these different types of cables likewise. So all these things combine and a particular unit that is known as computer. Okay, so in that sense we can say keyboard is a part of computer. Case one. Now look at the second example, books and writer. अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, देखिए एग्रीगेशन के केस में बुक एक अलग एंटिटी है, राइटर इज अ डिफरेंट एंटिटी। लेकिन अगर राइटर ना भी रहे तो भी बुक एग्जिस्टेंस में रहेगी। गेटिंग इट? कि मान लीजिए कोई भी बुक आप देख लीजिए, जिसके ऑथर जो काफी पुरानी बुक हो, जिसके ऑथर अभी नहीं हो, है ना, इवन देन बुक इज इन एग्जिस्टेंस। ओके, बट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन, ये जो फील्ड वाला डायमंड है, इसमें देखें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, व्हाट्सएप। दिस इज एन एप्लीकेशन। ओके, एंड एट दिस साइट आई हैव मेंशन्ड व्हाट्सएप ग्रुप। आपका जो जी सेक्शन का ग्रुप है उसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर व्हाट्सएप ही इंस्टॉल्ड नहीं होगा मोबाइल फोन में, तो क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। बता रही है डिफरेंस? तो दैट मीन्स दिस व्हाट्सएप ग्रुप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट्सएप। दिस इज composition. Here, books and writer are both entity. They are associated, but not entirely dependent on each other. Getting it? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को? एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, जल्दी से बताएं। हरी अप। गुड, गुड। देखिए इन्हीं टेक्नोलॉजीज को, इन्हीं टेक्निक्स को अब हम यूज करेंगे क्लास डायग्राम को ड्रॉ करने में। ठीक है, ग्रेट। Yes, class diagram example. I have taken an example of online shopping system. Either you can consider like Flipkart or Amazon or anything. Meanwhile, let me देखते हैं कितना विजिबल होता है। Is it? No, no. Yes, it is visible. आप लोगों को विजिबल हो पा रहा है क्या ये? विजिबल हो पा रहा है क्या ये आप लोगों को? नहीं है, ठीक है। So just give me 1 minute. अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, मैंने ये इमेज वहां पर आपको सेंड की है। देखिए उसको वहां एलर्ट करके देख सकते हैं आप। मिल गया क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पर देखिए। Have you got it in your WhatsApp group? Meanwhile, let me try to enlarge it. अब देखिए ध्यान से समझते चलिए, दिस इज अ क्लास डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। जल्दी से बताएं, व्हाट्सएप पे मिल गया होगा ना?
मिल गया, ठीक, ग्रेट। तो अब वहां से देखते चलिए, मुझे इधर सुनते चलिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कई सारी क्लासेस आपको दिख रही होंगी। कितनी क्लासेस हैं जरा काउंट करके बताओ। टोटल 8 क्लासेस हैं। मिल रही हैं सभी को? ध्यान से समझते चलिए। ये टॉपिक रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, बड़े ध्यान से समझते चलेंगे। लुक एट द कस्टमर क्लास। ओके गणेश, नोटेड। कस्टमर क्लास को देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास नेम कस्टमर मेंशन कर दिया। इन द एट्रीब्यूट सेक्शन आई हैव मेंशन एज CID, C नेम, C पासवर्ड, C एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, और कोलन लगा करके उनके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स, आइदर इट इज नंबर और स्ट्रिंग और वट एवर द थिंग्स। ओके, तो ये आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। लुक एट दिस पर्टिकुलर माइनस सिंबल, जस्ट लेट मी एनोटेट दिस वन। ये क्या था? गोल्डन रूल, कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आइदर यू आर सपोज टू मेक देम एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। शॉर्टकट ध्यान से सुनिए, जब तक कि मेंशन ना हो, आप आंख बंद करके सारे एट्रीब्यूट प्राइवेट डिफाइन कर दीजिए। दैट विल सेव योर एनफ टाइम। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी एट्रीब्यूट्स 3 4 5 6 आप जितने भी डिफाइन कर रहे हैं, सभी को प्राइवेटली डिफाइन कर दीजिए। माइनस सिंबल लगाते चलिए सभी पर। ओके, ये देखिए मैंने पूरी डायग्राम में, पूरे क्लास डायग्राम में मैंने जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, ये सारे प्राइवेटली डिफाइंड है। एंड दिस इज 110% ओके। नो टेक्निकल इश्यूज ओवर देयर, जब तक कि रिटन ना हो कहीं पर। ओके, कोई कंडीशन ना हो तब तक। आगे चलें। यस, नाउ लुक एट दिस ऑपरेशन एंड functions part. I have mentioned 6 different functions. You are supposed to mention any 3 or 4, maximum 4। 4 से ज्यादा functions operations मत लिखिएगा। ओके, 2 to 4 चलेगा। दो, कम से कम 2 जरूर हो, अगर कोई छोटा भी है तो, या रेयर केस में वो 1 भी हो सकता है, या अभी आप एग्जांपल देखेंगे इसमें 0 भी होगा एक, है ना? तो दैट डिपेंड्स, बट नॉट मोर देन 4 एट ऑल। सो आई हैव मेंशनड व्यू प्रोडक्ट, add to cart, order, payment, login, registration, likewise। इन सब के आगे ये ब्रेसेस लगना, जो स्मॉल ब्रैकेट लगना नेसेसरी है। Then apply colon, and it's a return type. You can see throughout this diagram I have mentioned all the functions return type as void। कुछ मत सोचिए, जब तक कि क्लियरली मेंशन ना हो, सारे रिटर्न टाइप void बना दीजिए। दैट विल सेव योर enough टाइम। Additionally, all the functions are declared as public, because देखें जरा ध्यान से, सभी जगह मैंने प्लस लगाया हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली ओके विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ओके, सारे मैंने फंक्शंस क्या कर दिए, पब्लिकली डिफाइन कर दिया, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस एज वेल। अगर इनको मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करता तो थोड़ा सा गलत हो सकता था। सारे फंक्शन मेरे कैसे हैं, वो कोई और भी यूज कर सकता है। इस क्लास में भी यूज होंगे और आगे की क्लास में भी यूज हो सकते हैं। तो ये तो आइडियोलॉजी है, ये तो होना ही चाहिए था, है ना? अदरवाइज इनहेरिटेंस कैसे एस्टेब्लिश करेंगे आप? तो दिस इज लाइक दैट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। Now look at rest of the classes. I have mentioned another class as product, p name, PID, p price, its corresponding data type, all private type functions, available stock, get product. Once again, they are declared as public, and return type is void. Another class is like cart. Cart may have only cart ID and or on what particular date. So number and string type, private type it is defined. Publicly, it is defined as delete cart or update cart. These two functions may be there, and their return type is like void। अब आपके पास WhatsApp पर वो इमेज है, यहाँ भी आप इमेज देख रहे हैं। जरा ये बताएं कि जितना अब तक मैंने डिस्कस किया है, अभी आप लोग सिर्फ इन बॉक्सेस को देखेंगे, क्लासेस को। तो क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, इनसे रिलेटेड कोई डाउट है क्या अभी? अभी हालांकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन अभी आप सिर्फ क्लास के बॉक्सेस देखेंगे। इन बॉक्सेस में क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ग्रेट। However, till Abhishek and Ganesh responded,
अब देखें ये जो मैंने इधर स्क्रीन पर अगर आप लोग देख रहे हो, सो ऑर्डर एंड पेमेंट। हालांकि अभी मैंने कनेक्शन स्टार्ट नहीं करा था, तो चलिए पहले कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग क्लासेस आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो गए हैं। ओके, या ऐसे कर लीजिए, देखिए ये इसके आगे देखें आप, लाइक एक पेमेंट नाम की एक क्लास मैंने बनाई थी, एंड दैट कैन बी जनरलाइज्ड इनटू टू टाइप्स, एज आइदर ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट, है ना। तो ये भी आई होप क्लियर होगा सभी को, ये दोनों ही अल्टीमेटली पेमेंट के ही टाइप हैं। तो चाहे मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँ या ऑफलाइन पेमेंट करूँ, ऑफलाइन सिंपली मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, और इफ इट इज ऑनलाइन देन maybe through debit card, ATM card, net banking, or UPI, whatever the meaning may be there. Okay, so function may be bank authentication. तो जो भी हो सकता है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। once again they all are privately identified, all attributes and functions are publicly. तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। now look at the association कि जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, देखिए कस्टमर टू इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, कस्टमर इज कनेक्टेड विद एडमिन। I repeating, customer is connected with admin. In general cases, there must be single person associated as admin. That's why at the end of admin, I have mentioned as 1. Look at this. Getting this? But at the end of customer, I have mentioned as 0 to multiple. You can also write 1 to multiple. मैंने 0 ही मान के चला कि इस वक्त कोई भी शॉपिंग नहीं कर रहा इस करंट मोमेंट ऑफ टाइम पर, नो वन इज लॉग्ड इन, वो मैंने मान लिया। आप चाहते तो यहाँ पर 1 से भी लिख सकते थे, दैट इज ऑल्सो ओके। फ्रॉम 1 टू मोर, कि एक से ज्यादा कस्टमर हैं, एंड ऑल दीज कस्टमर्स आर हैंडल्ड बाय सिंगल एडमिन। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई है सभी को? दिस कनेक्शन फ्रॉम 1 to many और 0 to many to 1, इज इट क्लियर? रेस्पॉन्ड, ग्रेट। अब इसी तरह से जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको जहां जहां पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं उनको कनेक्ट करते चलिए। अब देखें, आई हैव ऑल्सो कनेक्टेड कस्टमर टू प्रोडक्ट, 1 to many and 1 to many. So many, one customer may have different products, different customers may have same product, and different customers may have different products. So all three cases are applicable. That's why I have mentioned 1 to many, 1 to more. देखिए इधर भी जहां मेरा कर्सर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Yes, this one and this one. So product and customer both may be 1 or more. Okay, but at the same and execute. अब आप यहाँ देखें, दिस इज व्हाट, कस्टमर, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, बट दिस इज कनेक्टिंग विद कार्ट। अब आपने कभी नोटिस किया हो तो आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन या स्नैपडील किसी को भी ऐसे साइट साइट पर आपकी अकाउंट जरूर होगा, है ना, बट यू आर हैविंग सिंगल कार्ट ऑलवेज, कि एक कस्टमर की एक ही कार्ट होती है। सो दैट्स व्हाई एट द बोथ एंड वी आर हैविंग purely 1-to-1 relationship, one customer, one cart. Okay, but look at this product to cart, product class and class cart. There may be 1 to more. एक प्रोडक्ट मल्टीपल कार्ट्स में हो सकता है ना, या एक कार्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, दोनों केस एप्लीकेबल है। सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड एज 1 to many or 1 to many. Okay, now look at this particular site. Admin order, single admin may have handle different types of order. यहाँ मैंने 0 to more लिखे हैं, आप चाहते तो 1 to more लिख सकते थे। मैंने 0 सी कैसे मान के चला कि इस समय कोई ऑर्डर नहीं है। हाउएवर दिस इज वेरी आइडियल सिचुएशन, कि अभी इस फेस्टिव सीजन में तो शायद पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि कभी कोई ऑर्डर ही ना हो, है ना, रन टाइम पे कुछ ना कुछ जरूर होगा थ्रू आउट नेशन, थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड। सो दिस इज लाइक यू मे मेंशन एज 1 to 1 or more. However, the product is also connected with order. Definitely product तो मैंने ले लिया, लेकिन उसको ऑर्डर करना भी जरूरी है। So multiple products may be ordered or vice versa may be. Okay, so that's why this is mentioned as 1 to many and 1 to many. One product may have different order, कि अभी वॉशिंग मशीन पे ऑफर निकला हुआ है तो कई सारे ऑर्डर आ गए उसके। ओके, और एक ही ऑर्डर में कई सारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं,
कि मैंने एक ऑर्डर किया, उसमें मैंने टी शर्ट भी मंगा ली, वॉशिंग मशीन भी है, मोबाइल फोन भी है, लाइकवाइज. सो इट डिपेंड्स. नाउ कम टू दिस पार्ट. लुक एट दिस वन. ऑर्डर इज कनेक्टेड विद पेमेंट. अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा रूल है, जल्दी से बताइए. क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने? एसोसिएशन का कौन सा टाइप है ये? डायमंड बॉक्स इज फिल्ड. विच टाइप दिस इज? एनीवन हरी अप. composition. No, Abhishek, this is composition where full dependency is there. है ना. एग्रीगेशन में दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है, अगर दोनों अलग अलग भी हो जाए तो. लेकिन अगर आप देखें, जब तक कि पेमेंट नहीं हो रहा है, उस ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है? वो तो सिर्फ एक कार्ट में पड़ा रहा. भाई ऑर्डर तो तभी मानेंगे ना जब मैं पेमेंट एटलीस्ट या ये तो बताऊं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पे दूंगा, है ना. तो जब तक कि पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट कंफर्मेशन नहीं होगी, देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर. That's why I have mentioned as composition over here. Is it clear to everyone? जल्दी से बताएं. एक ऑर्डर का एक ही पेमेंट होगा. मल्टीपल ईएमआई वाला केस छोड़ दीजिए, अदरवाइज यूजली क्या होगा कि एक ऑर्डर का एक ही पेमेंट होता है. ये क्लियर है क्या सभी को? दिस ऑर्डर टू पेमेंट. ओनली दीपक रेस्पॉन्डेड. शशांक. दो तीन लोग और रेस्पॉन्ड करे, पता लगे सब समझ रहे हैं. अभिषेक ओके. व्हाट अबाउट शुभांशी, गणेश? Okay, great. So this is clear to you guys, and this one we have already discussed the generalization, so that it is clearly mentioning payment may be either online or offline. So this is all about class diagram. अब thoroughly उस पूरे डायग्राम को फिर से देख लीजिए सभी लोग. अब कहीं भी कोई डाउट है वो पूछिए. जितने भी शॉर्टकट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है. हाउवर देखिए, अगर ये ऑफलाइन पेमेंट है, इस पर कोई, क्योंकि ऑफलाइन है इसलिए कोई फंक्शन नहीं है ना, तो ये फंक्शन वाला इस केस में ब्लैंक रह सकता है. लुक एट दिस. ओके, क्योंकि अब जब मुझे फिजिकली पेमेंट करना है तो उसका फंक्शन क्या होगा, कैसे मेंशन करेंगे. तो थॉरोली देख लीजिए इस क्लास डायग्राम को जल्दी से. अगर कोई डाउट है तो पूछें. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही डायग्राम करेक्ट है. ओके, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर वैलिड इमेजिनेशन. आई रिपीट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर वैलिड इमेजिनेशन. मेरी इमेजिनेशन ये थी तो मैंने ये बना दिया. आपकी इमेजिनेशन जो वैलिड होगी वो हो सकता है इससे थोड़ी सी डिफर हो, तो अगर वो वैलिड है तो वो डायग्राम भी ओके होगा. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा. सो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, आई विल डिस्कस वन केस, वन केस स्टडी, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एटलीस्ट 3 to 4. तो अभी ऑनलाइन शॉपिंग का हमारा हो गया. अब आप रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल और एनी केस ऑफ योर चॉइस, कम से कम 3 जरूर ट्राई कीजिए. अदरवाइज ये सिर्फ एक फोटो बन के रह जाएगा. जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा. फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये ध्यान रखिएगा, हर एट्रीब्यूट पर एक्सेस स्पेसिफायर जरूर लगेगा एज आइदर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. हर फंक्शन पर एक्सेस स्पेसिफाई जरूर लगेगा एज पब्लिक, जब तक कि कुछ स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड ना हो तब तक. सभी का रिटर्न टाइप वॉइड डाल दीजिए और सभी एट्रीब्यूट्स के करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स मेंशन करते चलिए.
एडिशनली कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोशिश की, different concepts of class diagram like generalization, association in terms of composition, and degree, either it is one to one, one to many, or likewise. ये सब mention जरूर करके आइएगा, okay? Because all these things carry marks. जो आपके marks होंगे वो इन चीजों पे भी dependent है कि कितना precisely, कितना nicely आप लोग इसको draw कर रहे हैं. So getting it? So is there any doubt regarding this topic? Okay, that's great. So it's my humble suggestion, you can say, request तो पता नहीं कही है नहीं कहा है, but yes, this is suggestion as well. कि please try for at least 3 to 4 different cases. Either you may go for library, may go for banking system, result management system, hospital, railway reservation, bus reservation, any case, whatever you like. But please try for at least 3 to 4 cases to draw class diagram. Okay? Only then you will be comfortable in examination. Otherwise, you will be stuck. So this is all about myself, means about class diagram. So that यहाँ तक हम लोग आ गए थे. Rest is reference as usual. Okay, so nothing to show. So, okay, in the next lecture we will come up with some other diagram. Till then, it is expected that you will be come up having some solutions as well for different types of case studies. Till then, take care. Bye bye. As you are having no doubt, that's why.